greatness. An Indian lawyer, an anti-colonial nationalist, and a political ethicist are some of the roles played by Mohandas Karamchand Gandhi, an epitome of simplicity. He took his first step towards the change he wanted to see, towards independence, towards a sovereign nation where everyone could live with dignity. So today we have with us Mr. Deepak Antani to talk about how he has carried forward Gandhian legacy, both in his life and his work. Good morning, viewers. Welcome to the 7th episode of Gandhiji at 150, a web series by DPS Popal. Today, Aditya Bhatt and I, Mahika Gaur, are honoured to have with us Mr. Deepak Antani. He is a renowned director, producer, actor, author, and most importantly, an inspiration for all of us. He has worked in several dramas, documentaries, films, and live multimedia shows. Mr. Antani has been awarded with numerous awards and felicitations for his commendable work. He is also a prominent figure in print and digital media platforms. He is Bachelor in Performing Arts from Baroda University and is Programming Head in ETV Gujarati and CEO of Soham and Pranavi TV. He is also recognized as top 100 record holders in performing maximum number of Gandhi-related performances in Indian Book of Records. We welcome you, sir. Thank you. So, what are your memories of childhood of Gandhiji? It's very common. जैसे बाकी सब बच्चों को होती है वैसा ही था. थोड़ी बहुत स्टोरीज विच वी ऑल नो कि उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र प्ले देखा या श्रवण पितृभक्ति जो हमारे सिलेबस में आता है या छोटा मोटा इधर उधर पढ़ते हैं. कभी गांधी आश्रम की मुलाकात ली, विजिट लिया, काइंड ऑफ नथिंग मच, वेरी कॉमन मेमोरीज जो और लोगों को होती है ऐसा ही, nothing much. Sir, there are numerous well-known ideologies of Gandhiji. How, according to you, can a common person inculcate these values in his or her daily life? गांधी जी का as we all know 11 महाव्रत दिए थे. सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म संभाव, अस्तेय, निडरता, 11 महाव्रत थे. So that was his teachings. But talking about the common man, तो वो जब एक बार जेल में थे तब उनके एक साथी ने उनको पूछा था कि लोग आपको महात्मा कहते हैं तो हाउ यू बिकेम महात्मा. सो उनका जो आंसर था इज वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड कि कोई भी बाय बर्थ महात्मा नहीं होता है. मुझे भी बचपन में बहुत सारे अवगुण थे, बहुत सारे दोष थे, बट बाद में मैंने कॉन्शियसली जागृत रहकर वो सब दूर किया और जो अच्छे अच्छे वर्च्यूज है, अच्छे अच्छे गुण है, उसको धीरे धीरे मैं डेवलप करता गया. जैसे एक बनिया अपनी बचत के लिए वो गल्ले में आधा आधा पैसा रोज डालता है और बाय पीरियड ऑफ टाइम वो रिच बन जाता है, वैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश की और अभी ऐसा टाइम आया कि आप लोग मुझे महात्मा कहते हैं. सो दिस इज पॉसिबल फॉर एनीवन, एनी कॉमन मैन कैन डू इट कि हर रोज कुछ नया या हर रोज कुछ नया डेवलपमेंट करें, कैरेक्टर में कुछ नया सीखे, जो बुरा है उसको निकालने की कोशिश करें, दैट काइंड ऑफ. बट इट्स नॉट इजी. बोलना एक बात है, उसको प्रैक्टिस में रखना दूसरी बात है. देयर आर सो मेनी हर्डल्स. सो he also faced so many hurdles. So he struggled to it and then he formed a system. वो बोलते हैं कि मैं 2 डायरी रखता था. एक डायरी में रोज सुबह ये लिखता था कि मुझे आज क्या क्या करना है. During the day time I consciously tried to practice all these things कि मुझे आज ये चीज करना है, ये चीज करना है. And end of day मैं ये दूसरी डायरी में लिखता था कि आज मैं कहाँ फेल हुआ, मैं क्या नहीं कर पाया, जो मुझे कल फिर से कोशिश करना है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ ए वी कैन से सेल्फ ऑडिट. और सेल्फ ऑडिट मतलब हमें
खुद का जज नहीं बनना है, वकील नहीं बनना है। हमारी जात को एडवोकेट करके हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड बिकम अवर जज कि हमें क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए या हमने क्या गलत किया, हमने क्या सही किया। सो दैट वाज हिज वे ऑफ डेवलपिंग हिमसेल्फ टू दी मोहन टू महात्मा, सो दैट any common man can implement it. So, what are your learnings as a human being and as an Indian after playing the role of Gandhiji? Oh, so many, so many learnings. But as I was doing these roles and people were accepting me as Gandhiji and appreciating it, और फिर नए नए प्रोजेक्ट आते जाते हैं। हर प्रोजेक्ट का कोई नया सब्जेक्ट होता है, कोई नया कंसेप्ट होता है। गांधी जी की लाइफ इज वेरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो फोर्सफुली आई हैड टू गो थ्रू दैट, आई हैड टू रीड, आई हैड टू लर्न, आई हैड टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी, आई हैड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियल्स। बिकॉज क्या है कि अगर मैं राम या कृष्ण या ऐसा कोई कैरेक्टर करता हूं कि जो किसी ने देखा नहीं है कि वो कैसे लगते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, तो उसमें मैं जो भी करूंगा वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके ही मस्ट बी लाइक दिस। बट गांधीज वीडियोज आर अवेलेबल, फोटोग्राफ्स आर अवेलेबल, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। फिल्म्स भी बहुत सारी बन गई है, बहुत सारे एक्टर्स ने गांधी परफॉर्म किया है। सो इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये गांधी है, या ऐसा बिलीफ, मेक बिलीफ हो ऐसा। सो दैट इज वाई आई हैड टू स्टडी गांधी जी अ लॉट। So many things impressed me, but one very important thing is he practiced what he wanted to preach. उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, my life is my message. He practiced everything, so he was very clear about everything कि हम जो जानते हैं that is the information, but अगर हम उसको प्रैक्टिस में रखते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, then it becomes a knowledge. So he was very clear about all these things कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि कार में यहाँ से चाबी डाल के ऐसे घुमाएंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे तो चालू होती है, और यहाँ गियर्स है, ये स्टीयरिंग है, वो मालूम है, बट दैट इज अ नॉलेज। जब तक मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा उसमें क्या स्ट्रगल है, कितना डिफिकल्ट है, वो पता नहीं चलेगा। सो ही प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग, सो ही नीड नॉट टू प्रीच कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ही प्रूव्ड कि ऐसा करने से ऐसा होता है। सो दिस इज द वन मेजर थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी। अनदर थिंग इज ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस। उसने जो भी किया वो एकदम क्लैरिटी के साथ किया। एंड सबसे इंप्रेसिव बात यह थी कि ही वॉज नेवर अगेंस्ट द पर्सन। दैट इज वाई ऑल ब्रिटिशर्स वर एप्रिसिएटिंग हिम, और दे आर फाइंडिंग वेरी इजी टू नेगोशिएट विथ हिम, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा जो लड़ाई है वो सिर्फ सिस्टम के सामने है। सो ऑल ब्रिटिशर्स वर हिज फ्रेंड्स। एक जनरल स्मट्स करके थे अफ्रीका में, सो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट गांधी कि ये तो उसको जेल में डाल दिया, ये सब किया। बट गांधी ने while he was in jail, he learned to make चप्पल out of the tire rubber, और अपने हाथ से उसने चप्पल बनाए और वो जनरल स्मट्स को गिफ्ट किया। एंड जनरल स्मट्स हैज टू रिकॉग्नाइज इट, और उसने रेसिप्रोकेट करके कुछ बुक्स उनको दी। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशंस वर देयर एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स। बट जब ये उनका साउथ अफ्रीका में आंदोलन चल रहा था तब वहां के रेल कर्मचारियों का भी आंदोलन चल रहा था। सो दे केम टू गांधी जी एंड दे सेड कि आप अपना आंदोलन भी थोड़ा और फोर्सफुल बनाओ, हम भी फोर्सफुल बनाते हैं, गवर्नमेंट थोड़ा दबाव में आ जाएगी और हम दोनों को फायदा होगा। सो गांधी जी सेड नहीं, आई विल नेवर मिक्स टू थिंग्स। आप अपना आंदोलन खत्म करो, फिर आई डोंट वांट टू मिसयूज ऑल दीज थिंग्स, तब तक मैं मेरा आंदोलन होल्ड पर रखता हूं। सो जनरल स्मट वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय
is this practice. So he accommodated Gandhi ji to solve the issues. और गांधी ने जो चप्पल दिए थे वो आज भी वहां पर म्यूजियम में है कि आई एम नॉट ए मैन कि ये चप्पल के अंदर पैर डाल सकूं. सो दिस इज फॉर द म्यूजियम आई एम गिफ्टिंग. So this kind of personality, he was so many examples. Sir, after working in so many films, dramas, documentary, one can say that you are a live image of Mahatma Gandhi. So, according to you, which part of Mahatma Gandhi's life is most inspiring for the current generation? गांधी जी ने ऐसा कहा था कि ड्यूरिंग माय होल लाइफ फॉर द सोसाइटी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा और सबसे इमीडिएट अगर हमें जरूरत है तो दैट इज चारित्र गढ़तर, कैरेक्टर बिल्डिंग. उसकी बहुत बड़ी जरूरत है. एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इज क्या बोलता है कि लर्निंग फॉर द सोल, आत्मा का शिक्षण. मतलब what to do and what not to do, do's and don'ts, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसकी क्लैरिटी बचपन से जनरेशन में होनी चाहिए. सो फॉर दैट ही फॉर्म्ड बुनियादी शिक्षण, नई तालीम जिसको बोलते हैं बेसिक लर्निंग. ही फॉर्म्ड आउट दैट सिस्टम ऑफ लर्निंग जिसमें सब लोग साथ में नॉट ओनली पढ़ाई करते हैं बट सफाई भी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं और ऑल अदर स्किल्स कारपेंटरी ये वो दूसरे सब स्किल्स भी सब साथ में मिलके करते हैं. तो दैट टाइम थिंकिंग टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर, कोई प्रॉब्लम आया तो हाउ टू टैकल इट, बहुत सारे लाइफ लर्निंग्स वो सीखते हैं कि कोई साथ में नहीं है तो उससे कैसे साथ में लेना है, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, दूसरे लोग क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं. ये सब चीजें आज की जनरेशन को सीखना बहुत जरूरी है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए. जब वो छोटे थे, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, ही वॉज नॉट वेरी मच मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट्स. तो लोग मतलब बाकी के दोस्त लोग उसे हेट करते थे या उसकी मजाक उड़ाते थे, कभी कभी उसको मारते थे, ऐसा भी होता था. तो वो मार खाकर आते थे, तब उसकी माँ बोलती थी कि तू क्यों रोज मार खाकर आता है, तुझे भी सामने उसको मारना चाहिए तो वो मारना बंद कर देंगे. बोले नहीं, मैं उनके जैसा थोड़ा बन सकता हूं. सो व्हाट यू आर यू बी इट. ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक सबने देखा होगा उस टाइम पे. ज्यादा से ज्यादा वो देख के बच्चे ने ऐसा सोचा होगा कि मैं भी इसके जैसा बनूंगा, मैं भी सत्य का आचरण करूंगा. बट वॉट ही थॉट वॉज कि सब क्यों नहीं बन सकते, क्यों सब सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकते. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ ए कॉमन मैन and a man who was supposed to be That is something yes. that one must inculcate. सर, आपने इतनी सारी मूवीज फिल्म्स बनाई है, आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको एनलाइटन किया, आपकी लाइफ में डिफरेंस आया उसकी वजह से? बहुत सारे हैं बट एक एक्सपीरियंस कहने जैसा है कि व्हेन आई वाज डूइंग युग पुरुष प्ले, I am throughout on the stage all 3 hours and I am narrating the play. So मेरी एक कॉर्नर पे गांधी की बैठक थी. तो at one point of time there is a big solo loquy, एक लंबा सा इमोशनल डायलॉग था. और बरोबर उसी समय पीछे बैक स्टेज में सेटिंग वाले ने कुछ टक 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 करके जो भी उनका काम करना था उसकी आवाज आई. सो आई गॉट डिस्टर्ब. सो आई होल्ड द प्ले. ऑडियंस को सॉरी बोल के मैंने उसको जरा सा डांटा कि भैया तुम चालू ड्रामा में जब इतना सेंसिबल चल रहा है तो जो काम करना था पहले कर लेना चाहिए था, अभी क्यों करते हो, और अगर करना ही है तो दूसरी साइड जाके करो या पीछे जाके करो.
आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. सो नाटक खत्म होने के बाद एक व्यूअर आया और बताया कि सर बहुत अच्छा रहा, वी आर वेरी मच इम्प्रेस, आपने अच्छा किया. पर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपने गांधी जी के कॉस्ट्यूम में और गेटअप में व्हेन यू आर इन रोल आपने उसके ऊपर गुस्सा किया, वो अच्छा नहीं लगा. सो ऑडियंस इतना इन्वॉल्व होता है और इतना उनके दिमाग पे असर होता है. सो वी शुड बी मोर कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल व्हेन आई परफॉर्म गांधी जी. सो एवरी टाइम मुझे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है. Sir, you have also performed live interaction with common people through events such as युग पुरुष और पद यात्रा. आपने भी युग पुरुष की बात की, ठीक है. So, like being गांधी जी, आम लोगों से बात करना, interaction करना, like how did you feel? Like in person when you talked with people and they portrayed you as महात्मा गांधी, तो आपको कैसा लगा? बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है क्योंकि लोग आते हैं, पैर पड़ते हैं, सेल्फीज लेते हैं. तो आई हैव टू कंट्रोल माई ईगो एज एन एक्टर कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया, लोग मेरे से सेल्फी लेते हैं, आई एम स्टार, कोई ऑटोग्राफ ले जाते हैं, ये वो. तो वो सेल्फ ईगो पहले तो कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता है कि भैया तुम महान नहीं हो, तुम जो कैरेक्टर कर रहे हो वो महान है. इट इज नॉट यू बिकॉज ऑफ योर गेटअप. अभी ये गेटअप चेंज हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा ड्यूरिंग पद यात्रा, क्योंकि तब तक जो मैंने किया था वो प्लेस किए थे या फिल्म्स किया था जिसमें प्रिपेयर्ड डायलॉग रहता है, प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट रहता है, जो तैयार किया है, प्रैक्टिस किया है, उसको अगेंस्ट कैमरा या अगेंस्ट ऑडियंस मुझे परफॉर्म करना होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तालियां सुन सकता हूँ या पिन ड्रॉप साइलेंस है सो दे आर गेटिंग मी, वो देख सकता हूँ. कभी कोई इमोशनल सीन है तो आई कैन सी कि उनकी आंखों में पानी आ रहे हैं और लाइट में ग्लिटर होते हैं. वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एंजॉयमेंट एज एन आर्टिस्ट मिलता है कि पीपल आर गेटिंग इट. बट पद यात्रा में तो आई वॉज ऑन रोड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर कमिंग टू मी. कोई हार पहना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई पैर पड़ रहा है, कोई फोटो ले रहा है. तब ऐसा लगता है कि दिस इज द रियल एक्सेप्टेंस. जब मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सीइंग मी ऑन द रोड और लोग आ रहे हैं और ऐसा ही मान रहा है कि ये सही में गांधी जी है, उस टाइप का जब रिएक्ट कर रहे हैं तब बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है. और ये सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि अभी तक इस आदमी की इतनी इज्जत है, वो अच्छी बात है. So, आपका कोई मैसेज टुवर्ड्स यूथ और सोसाइटी? बहुत जो गांधी जी ने कहा है वही है कि हम लोग क्या है कि डरते बहुत हैं कि मैं सत्य का पक्ष लूंगा, सही बता दूंगा तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, मुझे निकाल देंगे या मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा. ऐसे बहुत सारे डर होते हैं, वो निकाल देना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है. बिकॉज जब आप सत्य के पक्ष में है एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस कि सत्यमेव जयते, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है. कम वॉट में जो होना है वो मैं सत्य के पक्ष में रहूंगा. तो गांधी जी कहते हैं कि सत्य की इतनी ताकत है, सत्य की एक छोटी सी चिंगारी झूठ के बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकती है. तो ये डर निकाल के हमें, जैसे गांधी जी हर चीज में स्पष्ट थे, ऐसा स्पष्ट रहकर जो हम सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानते हैं. उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है, जो सालों से चला आता है, सब धर्म में कहा है, सब है. बट प्रैक्टिस में रखने से हम डरते हैं. हम निडर नहीं है, हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतनी क्लैरिटी नहीं है. वो डर निकाल देने की जरूरत है, वो एक चीज है. और वो निकाल कर हम जो भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एज ए स्टूडेंट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट?
So it is your responsibility to learn good things, to decide do's and don'ts for your future, right? Whatever you will be doing for the country. ऐसी एक भावना के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे. क्या है कि एक आदमी कुछ काम कर रहा था तो बोला तुम क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मजदूरी कर रहा हूं. और क्या, मेहनत किए बिना कहाँ पैसा मिलता है. दूसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा. तीसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं एक ऐसी चेयर बना रहा हूं जिस पर कोई एक ऐसा आदमी बैठेगा जो देश का ये करेगा. सो एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस. आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कौन सी चीज में, उसका एटीट्यूड चेंज कर लो तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है. दैट इज व्हाई ही टोल्ड कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में जो देखना चाहते हो उसकी शुरुआत आपसे करो. यू बी द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड. आप शुरुआत करो, लोग अपने आप जुड़ेंगे. जो उन्होंने करके दिखाया कि मैंने शुरुआत की, जिसको आना है आओ. और कितने बड़े बड़े लोग आए जो शायद उनसे भी बेहतर पर्सनालिटी में थे या नॉलेज में थे या कैपेसिटी में, पोटेंशियल में थे. सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना टाइप के लोग जो खुद विनोबा भावे से लेके सब कोई, जो खुद बहुत बड़ी पर्सनालिटीज थी, जो खुद बहुत बड़े नॉलेजेबल लोग थे. बट दे ऑल्सो फॉलोड गांधी जी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि उन्होंने प्रैक्टिस में रखा. तो हमें भी वी शुड स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. जो दुनिया में देखना चाहते हैं वो खुद करना चालू करो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बाद में जुड़ते जाएंगे. ये मेरा मैसेज है कि जो कर रहे हो देश के लिए करो और खुद शुरू कर दो तो अपने आप बदलेगा. Indeed, your inclination towards work is the first priority. Thank you. Thank you, sir, for your valuable time and fine opinions. It was really enlightening to अच्छा, interact. I want to just add one thing with your permission. ये जो लास्ट मैसेज की बात है वो एक मैसेज देने के लिए आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स और आफ्टर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इतना सब होने के बाद भी ऐसी पर्सनालिटीज के ऊपर चीटे उड़ते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज होती रहती है. वैसी गांधी जी के ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है. सो काफी सारा रिसर्च करके मैंने एक प्ले लिखा, दैट इज काइंड ऑफ आपकी अदालत विथ महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी खुद आते हैं. उसको एक एडवोकेट कंट्रोवर्शियल ये सब कंट्रोवर्सीज के क्वेश्चंस करते हैं और गांधी जी सबके क्लैरिफिकेशंस देते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स, एक्चुअली क्या हुआ था. उसमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी आते हैं. एंड एट द एंड ऑफ इट हम लोगों पर छोड़ देते हैं कि नाउ यू डिसाइड कि उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया. सो ये और इट इज वेरी वेल रिसीव्ड. बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है कि दिस इज द थिंग वन मस्ट डू अबाउट द गांधी जी. सो आई एम होपफुली getting more and more shows all over the India and all over the world, and it will be a great contribution from me for the Gandhi 150. So it was a privilege to have you with us today, and it was your fine judgment and insightful thoughts which will surely help the upcoming generation to create a better future. So thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Gandhiji was pious, religious, and truthful. He believed in simple living and high thinking. Everyone who came in contact with him was deeply influenced by his personality. He believed that it was truth alone that prevailed in the end. He showed that self-sacrifice and courage can bring change to this world. We are capable of changing this world. So let us do this together. With that, we come to the end, the final episode of Gandhiji at 150. Thank you for joining us, and don't forget to like, share and subscribe.